السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سینٹ کا الیکشن چاروں صوبے اور اسلام آباد کی سیٹ پر بھی یہ الیکشن تھا۔ اگر کہا جائے کہ تاریخ کا شاید سینٹ کا سب سے بڑا اپسیٹ یہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت ایک سیٹ ہار گئی۔ حکومتیں سٹنگ گورنمنٹس مشکل میں بھی ہوا کرتی ہیں، سیٹیں ہارا بھی کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے پچھلے الیکشنز میں تحریک انصاف ہاری، اس وجہ سے کہ اتنا کچھ اس سیاست کا دار و مدار اس الیکشن پر تھا۔ تمام تر زور دیکھا آپ نے لگایا حکومت نے یہ اسلام آباد کی سیٹ نکالنے کے لیے۔ اگر خیبر پختونخوا کی ایک کم رہ جاتی، سندھ سے ایک ہار جاتے، شاید ایک فٹ نوٹ ضرور ہونا تھا، اس کے اوپر ہلکی پھلکی بات چیت شاید ہوتی، لیکن اصل فوکس ہی رہتا کہ تحریک انصاف کے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا جو اپوزیشن نے ان پر ڈالا تھا۔ کنورسلی یہ پریشر مزید بڑھ گیا ہے تحریک انصاف پر۔ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سوال آج ابھی بلاول بھٹو صاحب عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر کے گئے۔ کیا انہیں استعفیٰ دینا چاہیے یا اس اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو صرف حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوتا تو استعفے کا مطالبہ بھی بہت زیادہ زوردار اور مضبوط مطالبہ ہوتا، لیکن اس اسلام آباد کی سیٹ پہ دو الیکشن ہوئے، ایک خواتین کی مخصوص نشست پر جس میں فوزیہ ارشد صاحبہ تحریک انصاف 174 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ اس کا مطلب اس اسمبلی میں تحریک انصاف کے 174 ووٹ اب بھی ہیں۔ مسترد 5 ووٹ ان کے مسترد ہوئے، کتنے زیادہ بڑھ جاتے یہ ایک سیپریٹ بات ہے۔ سو دو سیٹیں، حفیظ شیخ 164، فوزیہ ارشد 174۔ یہ جو اگر آپ اس کو کمپیریزن کر کے انالیسس کرنے کی کوشش کریں، انالیسس بڑا مشکل ہے۔ کیا حفیظ شیخ صاحب کو ریجیکٹ کیا اس ایوان کے تحریک انصاف کے لوگوں نے یا عمران خان صاحب کو؟ پہلا سوال۔ دوسرا، کیا ضمیر جاگے ہیں یا ضمیر بکے ہیں؟ دوسرا سوال جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے، کیا ووٹ خریدے گئے گیلانی صاحب کی طرف سے؟ ویڈیوز کل آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی، گیلانی صاحب کے صاحبزادے علل اعلان فرما رہے ہیں ہاں جی میں ہی ہوں، ممبران سے بات ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے اہم ترین چیز، کیا کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو؟ شوڈ ہی ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس؟ ویسے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے، لیکن اس نتیجے کے بعد جس میں حفیظ شیخ صاحب 164 اور انڈر ڈاگ گیلانی صاحب جیت گئے ہیں، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ اور اب اگلا وزیر خزانہ کون ہوگا، یہ بھی بحث اب اگلے چند گھنٹوں میں شروع ہو جائے گی، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کو تو اب بیگ بند کر کے جانا پڑے گا۔ طارق فضل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، علی نواز امان صاحب تحریک انصاف سے بہت شکریہ آپ کا، پٹی صاحب کیسی طبیعت؟ ٹھیک ہو؟ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے پرائم منسٹر کو؟ از دیٹ دا مورلی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ مورلی ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہے، بٹ دیکھیں ہم تو اخلاقی طور پہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہو کہ ہمارے ایم پی ایز، آپ نے پچھلا سینٹ الیکشن دیکھا، 17 بندے ہٹا دیے ہم نے کے پی کے اپنے سٹنگ ایم پی ایز۔ ہم نے مورل ڈیسیژنز ہمیشہ لیتی ہے طریقے سے، مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہی طریقے انصاف تھوڑی دیر ہی میں رہتی کہیں خبر چلے گی پرائم منسٹر نے اس ایوان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فیصلہ کر لیا؟ ابھی میٹنگ جاری ہوگی، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں سیدھا اسمبلی سے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد بالکل ڈیسیجن آئے گا۔ پر بات یہ دیکھیں کنیکل سے پہلے یہ کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں نا کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ایٹ لیسٹ مورلی آپ اچھے گراؤنڈ پہ ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات، میں آپ کو ایگری سو کرتا ہوں۔ اگر علی امان صاحب اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے۔ میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے ادھر سے ایک سوال پوچھ لوں۔ فوزیہ ارشد 174، حفیظ شیخ 164، تحریک انصاف کو کون سے والے ووٹ ملے؟ 174 ملے، 164 ملے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن تمام صوبوں میں ہوئے، چاروں صوبوں میں ہوئے، اسلام آباد میں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لگ یہ رہا تھا، اگر آپ پاکستان کا پورا میڈیا دیکھیں، ایک ہی تھا بھائی، ایک ہی تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشن جب الیکشن ایک ہی تھا کوئی میٹر نہیں تو کرتا۔ پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہی کچھ ملا جو گیلانی صاحب کے مجھے یہ سیٹ پہ بتائیے ملا انہیں۔ 174 ووٹ لیے انہوں نے یا 164 ووٹ لیے؟ میرا تو خیال ہے 164 ووٹ لیے ہیں۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ہی تھا، وہی کنسیڈر ہوگا، اسی پہ دنیا بات کر رہی تھی، وہ اسی کا ضمیر دنیا بکا انتظار یا کر رہی ضمیر تھی۔ مجھے بتائیں ضمیر 164 ووٹوں پہ جاگا، 174 پہ کیوں نہیں جاگا؟ سر جہاں تک ضمیر جاگنے کی بات ہے وہ میں عرض کروں کہ دیکھیں جب ساجد صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوتا ہے اس وقت ضمیر کی آواز جاگتی ہے، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اس دن جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے؟ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، آپ کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا ہے۔ اس دن یہ کہتے ہیں ضمیر بکا، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں باتیں ہیں جو بھی آپ نے جو کمپیئر کیا نا حفیظ شیخ صاحب کا، دیکھیں حفیظ شیخ صاحب نہ پی ٹی آئی ہیں، جو
इलेक्टेड मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो अगर जाते हैं फौजिया अपने अरशद गली साहिबा मोहल्लों का में, ना होता ना इलेक्शन, तो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ना होती, वजीर आजम साहब को रिजाइन करने का ज्यादा मुतालबा होता कि सर आप यू लॉस्ट नहीं बनता यही है वैसे असूली तौर पर। लेकिन क्योंकि फौजिया अरशद साहिबा का वोट काउंट मौजूद है, इस वजह से सेविंग ग्रेस तहरीक इंसाफ के पास आई है थोड़ी। आप इस बात से एग्री करेंगे? आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत ये है कि वो फौजिया अरशद साहिबा की एक सीट की वजह से अपना मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस पर कोई बात नहीं मॉरल कर हाई रहा। ग्राउंड तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से आएगा, वो इसके बिल्कुल, बगैर मैं नहीं कहता हूँ कि आता। अब इस्तीफा लेके दोबारा इलेक्शन करवाएं, आपको अच्छा। पता लग जाएगा। भट्टी साहब, ये जो जमीर जागे हैं, ये जमीर सिर्फ एक सीट पर जागे है, दूसरी सीट पर जमीर नहीं जागा। देखिए, मैं असूल की बात, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर धांधली गलत है, बिकना गलत है, तो वो हर सूरत हर एक के लिए गलत है। मैं अभी आऊंगा, ये जो आप वोट को इज्जत देने की बात करते हैं कि अगर कोई आपकी दूसरी आपके मुखालिफ के वोट खरीद ले तो वहां पे इज्जत क्या मैटर करती है नहीं, और वो जो आज जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम भी अभी है, वो मैं आता हूं उसके ऊपर जो पार्टी लीडर्स के बयान आते हैं। भट्टी साहब, हाउ डू यू सी इट? 174 वोट्स 164। पहली बात तो ये है कि मैं हार गया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि हफीज शेख जीत नहीं, बहुत सारे लोगों की prediction गलत साबित हुई है, और इसमें गलत ऐसी क्या साबित बड़ी हुई, बात और है? ये होती हम अरे यार, आप अपना हंच देते हैं, आपको जो नजर आ रहा है, बता वाले नहीं देते। होते, वो होते हैं, और ये हार गया। और ये दूसरी मरतबा आ रहा हूँ। पहली मरतबा मैं लाहौर कलंदर को जिता चुका था, कराची किंग्स को हरवा चुका था। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठा सी यार। दूसरी बात यह है कि गिलानी साहब कानूनी तौर पर जीते हैं, इखलाकी तौर पर नहीं जीते। इखलाकी तौर पर उन्हें दरिया अबूर करना पड़ेगा, और ये हैं जमहूरियत के नहीं, चैंपियन। आपकी बात में उस वक्त मानूं अगर आपका ये ख्याल हो कि गिलानी साहब वोट जीत कर इलेक्शन जीते हैं। आपका ये ख्याल कैसे? आप कहते हैं ना अखलाकी, तो देखें मेरी बात सुने, गिलानी साहब ने अपने आप को प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। नहीं, मैं उस पे आता हूं, सुने उस पे आता हूं। आपने अपने आप को लोगों इस असेंबली इस ईवान के सामने प्रेजेंट किया। दो सूरतों में उनको वोट मिल सकती है, एक तो लोग समझे कि ही इज अ बेटर कैंडिडेट, दूसरा ये कि वो वोट खरीदें। आप जब कहते हैं कि वो अखलाकी तौर पे हार गए तो उसका मतलब यही है कि वोट खरीद के जीते। यस, और क्या? 160 वोट हैं अपोजिशन के, मुबैना तौर पर ये मैं कह रहा हूँ 160 वोट हैं अपोजिशन के, 169 वोट उनको मिले हैं। 9 वोट कहाँ से आए? 9 वोट, 7 वो जो मुस्तरद हुए छोड़ दे, वो 9 वोट को। और कौन है उनके पीछे? एक वोट को इज्जत देने वाले, जिन्होंने पंजाब में सेटलमेंट की मुखा किया, 5 तेरे 5 मेरे, एक चौधरी परवेज लाई साहब का, वो लोग जो सलाम नहीं लेने। एक तरफ कौन थे? डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं इमरान खान, दूसरी तरफ कौन थे? नाहल है, नलायक है, इसको वजीर आजम कहने वाला भी मुजरम है। तो सारे रल गए। दोनों मिल गए। किसके मफाद में? अवाम, मुल्क और जमहूरियत के मफाद में। नंबर 1, एक तरफ वोट को इज्जत देना, दूसरी जमहूरियत के चैंपियन। अच्छा, 160 वोट, 169 वोट, जमहूरियत जीत गई। तहरीक अदम एतमाद सेनेट के चेयरमैन की 43 वाले या 39 वाले जीते, तो 63 वाले हारे। तो उस वक्त क्या था? जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। ये छुरा इतना अकलमंद कैसे हो गया कि जब वो चाहते हैं घोंप देते हैं, जब वो चाहते हैं उसको जीत जाते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਰਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, और अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ करिए तो तीसरी बात नहीं, एक से आखिरी 14 बंदे खड़े हुए थे सादिक संजानी के सामने। नहीं 64 नहीं 14, मतलब जो बाद में बिके ना, उन्होंने कहा कि हम आप देखे नहीं सर, जमीन की आवाज होगी सर जी, जमीर की आवाज सही। लेकिन सर मैं यार सर, अगर वो अच्छा जी, जमीर की आवाज। देखिए, एक मिनट, बात ये है कि बंदे खड़े होके कह रहे हैं कि हम आप पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, एतराज वहां पे है। आधे घंटे बाद कैसे जनाब आपने अंदर जाके आपका दिल बदल गया है? आपने किसी को जहां पे सुना यहाँ पर आपको कहते पूरा हुए कि किसी ने कहा कि मौका हम हासिल था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में, एक साथ हुआ। वहां पे ये नहीं हुआ कि जनाब ये मेंबरान पहले खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आपको यहाँ पे वोट कुछ नहीं और हुआ देते। सर, यहाँ बाद पे में आप कुछ और, चेंज हो यहाँ गए। पे जो और यूसुफ फिर रजा गिलानी साहब चूंकि के मेंबरान डी सीट नहीं होते, सुने इसलिए यहाँ मौका पर था ये उनके हुआ पास। कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकाबले में जमीर जागा। फौजिया अरशद साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट है, उस केस में जमीर नहीं जागा। मुझे मैं जरा इसकी टेंशन समझना सुलझाना चाह रहा सीधी सी हूँ बात कि वो है। कौन सा जमीर है जो, या तो आप कहें कि हफीज शेख वाज अ बैड कैंडिडेट, जो कि हो सकता है, मुमकिन है तरीके साहब वाले सोचते हो यार मैं इस आदमी को वोट क्यों डालूं, ये बाहर से आया है, मैं आदमी नहीं देता। या तो कहें कि ये इस वजह से वोट, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ वोट है। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बड़ा सादा कर देता हूँ। पहली बात यह है जी कि शख्सियत का अपना एक वज़न होता है, गिलानी साहब का अपना एक वज़न है, जो मोहतरमा फौजिया साहिबा का जाहिर है अपना एक वेट है। मेरी आवाज़ सुन लें, एक सेकंड, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात अभी कर रहा मैं हूँ। आपको 15 लोगों की तस्वीर दिखाऊंगा। फौजिया अरशद साहब को रवो फौजिया रोन दी थोड़ा मौका है, हंसने का नहीं है। और मेरी बात लेकिन सुनो, मैं मैं कह होता रहा हूं हूं तस्वीर दिखाऊंगा, फौजिया अरशद साहब को पहचान लोगे? सर मैं अर्ज करता हूँ, पहचान लेंगे? मैं नहीं पहचानता।
अच्छा, मैं जिसको बिल्कुल नहीं कोई नहीं पहचानता। पहचानता मैं आपको- उसको 174 वोट मिले जिन्हें सर सारे मैं आप मुझे पूरी शायद बात तो finance करने minister ने दें, मुझे शायद पूरी बात तो वोट- करने वोट दें। मिलने की वजह ये पाकिस्तान होना तहरीक पहचानता इंसाफ फौजिया अरशद साहिबा को तहरीक इंसाफ की मेंबर गिन रही है, वो हफीज शेख साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं नहीं गिन गिन रहे, रही। ये मुमकिन है। तो आप इसको जमीर को क्यों इतना अच्छा, ज्यादा बीच में घसीट इसलिए रहे हैं? इसलिए कल वीडियो भी आई है ना। अच्छा, और और दूसरी पता है बात जमीर, ये है कि अगर कौन पता पाकिस्तान है तहरीक इंसाफ के मेंबरान बहुत मुखलिस अच्छा, होते हैं मैं- जमात के साथ, एक वाकया सुना एक आखिरी सीट point, पे मेरा आखिरी point। एक सीट पे तन मन धन लगा देते जिसमें पूरा पाकिस्तान देख रहा था इलेक्शन, नहीं लगाया उन्होंने। एक वाकया सुनाऊं आपको। 2002 की असेंबली पेट्रियट्स बनी, दोपहर को मैंने सुना है, बाय चांस असेंबली में था मैं, आप भी उस असेंबली का हिस्सा थे मेरा ख्याल। 2002 में इलेक्शन जीते थे, 2002 में नहीं 2008 में जीते। 2002 की असेंबली जनाब, उसमें पेट्रियट्स बन गई और पेट्रियट्स की तकरीर हुई। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पर काफिली के साथ मिले हैं। अगली तकरीर मौलाना फजल रहमान साहब की थी। उन्होंने कहा कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ पर नहीं, जनरल ज़मीर की आवाज़ पर इसमें शामिल हुए हैं, ये पेट्रियट्स बनी है। और जनरल एहतशाम ज़मीर उस वक्त डिप्टी डीजी ISI हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, सारा इलेक्शन में मैनेज हुआ था। तो रोला ये है कि अब ये फैसला कौन करे कि ये ज़मीर है या जनरल ज़मीर है। ये एक नहीं बात नहीं देखें, ये इसको ये comparison draw कर लेते हैं। आखिरी चले आप इसको इस तरह कह लें, आखिरी उस जुमला। वक्त वो जमीर की आवाज थी या जनरल जमीर की आवाज, आज कुछ लोग फैजियाब हो गए। नहीं नहीं आज फैजाब नहीं हुए ना, ऐ तो रोला है, फैजाब होते थे सारा वास्ता नहीं, ये तो अगर आउट है। मेरी बात सुनो, एक सेकंड, इसका मतलब है गिलानी साहब फैजाब हुआ। एक सेकंड, इसका मतलब गिलानी साहब फैजाब हुआ। मैंने ये तो नहीं कहा, आपने यही कहा, मैंने ये नहीं कहा। और क्या कह रहे हैं आप? आपने खैर तो सुनने बात वाले सोच ने रहे कह हो, दिया है। अब कुछ मैं कह इसकी मजीद तशरीह नहीं करूंगा। अच्छा तो अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, समझने वाले समझ गए ने सारा कुछ। अच्छा आखिरी बात अवाम ये- समझ गए हैं। आज आखिरी बात सर ये- बात कंपैरेटिव इनमें स्टडी से करो। फैज कम हो रहा है, अच्छा। फैज कम हो रहा है। नहीं देखिए, अच्छा, इस पे ये खुश हो रहे हैं और इस पे ये खुश हो रहे हैं। इलेक्शन खुश होने कमीशन की को बात है, कौन की इलेक्शन- जान वोट छूटेगी को यार? इज्जत तो कहाँ गया? तो कौन की जान वोट छूटेगी? को खुदा इज्जत का तो क्या है? वास्ता है। आप लोग टलेंगे, वोट कौन को की जान इज्जत तो क्या है? छूटेगी? अच्छा छोड़े, मैं और Election- कंपैरेटिव कंपैरेटिव उसके बाद में। कंपैरेटिव स्टडी है, वो कहते हैं जमीर जागा, क्योंकि तरीके इंसाफ के लोग नहीं पसंद करते हफीज शेख को। हो सकता है, ये मुमकिन है जी, ये this is one of the possibilities, you can't deny that. और देखिए, और दूसरी तरफ वो पसंद किसको कर रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करेंगे ना, मैं वोट डालना है, एक तरफ शाद भट्टी साहब है, एक तरफ काशिफ वासी साहब है, मैंने वोट डालना है, अब ठीक तो है? मुकाबला कोई नहीं ना, बेहतर मुकाबला। अच्छा 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 जी, तारिक फजल चौधरी साहब, ठीक है जी। भट्टी साहब और मैं क्या कह रहा चौधरी हूं? मैं क्या कह रहा हूं? हफीज शेख साहब के, क्या हफीज शेख को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया? क्या हफीज शेख साहब ने कभी किसी का सैलाब जदगान का कोई नेकलेस चोरी करते पाए गए? क्या हफीज शेख का बेटा एफिडन केस के अंदर था? क्या हफीज शेख से आपका दूसरा बेटा हज कोटा के अंदर इन्वॉल्व था? कंपैरेटिव स्टडी करेगी ना तरीके इंसाफ, तरीके का नजरियाती जमात है, तरीके इंसाफ देखती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल वो इस सोच समझ के वोट डालते हैं, बिल्कुल अक्लमंदों वाली बात की उन्होंने। पर बात जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक तरफ वो देख रहे हैं एक बंदा प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट, ठीक है, पीटीआई बैकग्राउंड नहीं है, पर जिस बंदे को वो जमीर जिस पर जगाना चाह रहे हैं उसका ये हिस्ट्री है, पूरा इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान जाता है, और सबसे ज्यादा ये लोग जानते हैं, उतरो नीचे उतरो, इस्तीफा दो, तुम नाअहल हो, अब तुम्हारे खिलाफ हम तहरीक चलाएं नवाज शरीफ साहब की तकरीर, एहसन इकबाल साहब पीछे, नाअहल वजीर आजम, नामंजूर। सबसे ज्यादा तो ये जानते हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी की किसी ने किट लगाई है सही तरह, तो ये बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में उनका नाम रोशन और किया है। जिन्हें हफीज शेख दी किट लवाई है ओए बैठे ने सारा वास्ता में तो मैं और बात काशिफ भाई, मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहा था। अगर आप आप मेरी बात आप मैं मेरी बात बात कर रहा मेरी हूं, बात आज प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम हो गया। मैं ये बात क्या कह रहा हूँ, उसके बाद देखें कल से वीडियो चल रही है, मैं एक और बात करता हूँ, सही बात अगर करते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन में जाना Yes, मैं वही बात कर रहा बाद में मैंने आपको एक शख्स गया अपने पुरानी कॉलेज, सेम ओल्ड गेट, सेम ओल्ड कैंटीन, सेम ओल्ड ऑफिस, लाइब्रेरी गया, कहता है सेम ओल्ड लाइब्रेरी, वहाँ एक बच्ची और एक बच्चा बैठे स्टडी कर रहे थे, कहता है सेम ओल्ड रोमांस। उन्होंने कहा जी हम तो कंबाइन स्टडी कर रहे हैं, कहता है सेम ओल्ड एक्सक्यूजेस। ये वो है, ये उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, सेम ओल्ड एक्सक्यूजेस, फलाना नवाज शरीफ की तकरीर, इनको पता ही नहीं हुआ क्या है इनके साथ। आपने बता दिया इनके साथ क्या हुआ है, सही बात है, ये नहीं समझ आ आप बता रही, देना, इन्हें एक हफ्ते बाद समझ लगेगी इनके साथ क्या हुआ है। मैं कह रहा हूं, आप और बता भाई दें, आप पे भाई। नो कॉन्फिडेंस हो गया है, आपके अपने तारिक भाई, आप मेंबरान बता ने देना, आप बता दें, हम तो हाई मॉल ग्राउंड पे जाएंगे, हम तो ये नहीं मेरी जान, कहेंगे मेरी कि बात असेंबली सुनिए। के फ्लोर पे मैं नहीं, कहता हूँ नहीं, ये है वो जरा आपके है, उस सवाल और बाहर में जाके मैं मुकर जाता जहाँ हूँ, से प्राइम मैं मिनिस्टर कहता हूँ इलेक्ट कतई हुआ है, खत आएगा, उन्हीं MNAs मेरे ने दादा बू से पूछो, उसी मेरे अब्बू से पूछो, इलेक्टोरल हम नहीं कॉलेज कहेंगे। ने आपको हम ये रिजेक्ट नहीं कर पूछेंगे। दिया है, सेम इलेक्टोरल कॉलेज जो प्राइम तरीका मिनिस्टर क्या का है, है, तरीका क्या सिंपल है सर। अब बात आएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर।
उसके बाद इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने कहा वोट डालो। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो मवाजना किया है अली अहमद भाई ने, अली अवान साहब ने, ये इस मुआशरे में काउंट ही नहीं करता। वोट देने में कौन कितना चोर है, कौन कितना डाकू है, कौन कितना लुटेरा है, ये बिल्कुल इखलाकियात इससे निकल जाए। हमारे बिल्कुल काउंट नहीं करता वोट डालते हुए। तो पता है प्रोग्राम तो पहले ऐसी की गल कर हाँ, रहा था। और किन लोगों के बारे में, जिन लोगों को इखलाकियात और असूल का होना चाहिए चैंपियन। हाँ। मैं उस वक्त हम ट्विटर देख के हंस रहे थे कि कैसे व्यूज भी लोगों के सियासी हैं। हाँ। अगर ये होमिसाइड के सपोर्टर है, अगर वो जीत गई तो उसूल फारक को गल। दूसरी बात, लेकिन अगर वो हार गए तो ना जी बड़ी दूसरी बात जो आपकी मैं आपको सेकंड करता हूं, वजीर आजम इमरान खान को इखलाकी तौर पर मोरल बुलंद रखने के आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन डस्का में नहीं, अब इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी, मुबैना तौर पर नासिर हुसैन शाह, मुबैना तौर पर सारी इन वीडियोस पर भी वैसे ही लेना चाहिए। मेरा ख्याल था कि ये रोक देंगे और नोटिस ले लिया उन्हें, और की करें? नहीं, मेरा ख्याल था रोक देंगे, रोक जाएं, इलेक्शन ना करवाएं, मुलतवी करें चंद दिनों के लिए, 10 दिन 8 दिन। क्यों अनफेयर है? अनफेयर क्यों? ये वो हो गया ना अनफेयर। 9 वोट कहां से आए, कौन से और कहां? अलहाज जमहूरियत के जो हैं, अब कुछ करना जो अलहाज नहीं, जो अच्छा, मुझे एक बिलावल साहब, मरियम साहबा, जरदारी साहब, एक सवाल का जवाब दें। 9 वोट कहां से आए? 9 वोट कहां से आए? ये जमहूरियत का चैंपियन है ना, इनका भी मयार बुलंद होना चाहिए। जमहूरियत जीती है आज, जमहूरियत 9 वोट लेके कहां से जीती है? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का। अब देखें, अब क्या हम कह रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डस्का में अगर 3 बजे इलेक्शन कमीशन एक्टिव था, कल शाम हम लोग गए, हमने पिटीशन दायर की, वो समझते नहीं रुक सकता इलेक्शन, ठीक है। अब आपके सामने कल से वीडियोस आ रही हैं, आपके सामने 180 वोटों में से 7 जाया हुआ, उनको छोड़ दें, जो 9 वोट उनको एक्स्ट्रा पड़े, वो मैल प्रैक्टिसेस है ना, मैल प्रैक्टिसेस है ना, मुबैना तौर पे। आपने देखें, आप मुझे बताएं, जितना हुआ है डस्का के अंदर भी, तो वो भी मुबैना हुआ है ना, उन्होंने हेयरिंग की है ना, उसकी मुबैना है ना। हम यही कह रहे हैं, अब इम्तिहान है उनकी परफॉर्मेंस का, इलेक्शन कमीशन की, जिस पे आपने सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि जस्टली होने चाहिए, फेयरली होने चाहिए, मैल प्रैक्टिसेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और मतलब उन्होंने जो अपनी राय दी है। लेकिन सर देखिए, ये आर्गुमेंट, माफी चाहता हूं, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक इलेक्शन है, और इस इलेक्शन का, मैं हो सकता है मैं आपके व्यू से एग्री करता हूं कि मुझे लगता हो कि शायद बहुत ज्यादती होगी, बट दिस इज एन इलेक्शन। इलेक्शन है क्या? इलेक्शन ये है कि लोग जाके अपना वोट डालते हैं एक बैलेट बॉक्स में, जिसका निकल आया। वरना तो इलेक्शन कराने की फायदा क्या? भाई, लेकिन अगर 100 हल्के के वोट हों, 100 तो वोट निकले 110, वोट तो पूरा निकले ना। इलेक्शन कमीशन का जो अपने लॉज हैं वो पढ़ लें कि आप वोट मांगना काशिफ भाई का हक है, मेरा हक है, अशाद भाई का है, फजल भाई का है हमारा हक। ये बताना भी मेरा फर्ज है कि तुमने किस तरह अपना वोट जाया किया है। Whoever commits the offense of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment। यार एक और वाला था, कौन सा? 171। काशिफ भाई, इनके वफाकी वुज़रा ने वोट अपना जो है वो वो करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया, मुस्तरद करवा दिया। मुझे ये बताएं कि वो भी इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, काबीना के लोग भी इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। अली गिलानी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि जनाब हमारा भाई शहजाद अली गिलानी, वो केड़ा अली गिलानी है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं गिलानी साहब बेटे की गल कर रहा हूं। अच्छा, साਡਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਲੀ गिलानी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि गलत नहीं कर रहे। जी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ हर गल ਨੂੰ गलत ना समझो ना। मतलब इनके वुज़रा अपने वोट मुस्तरद कर रहे हैं यार, अपने वुज़रा कर रहे हैं। और मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं सर जी, मैं कहता हूं कि कल अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करेंगे असेंबली से, वो ले लेंगे, मैं आपको बताता हूं। फिर क्या होगा? अब उसके पीछे एक टेक्निकल बात है। यही मेंबरान कौमी असेंबली, जब आप इनको ये हक दें कि वो खुफिया तौर पे अपनी राय का इजहार करें, तो नो कॉन्फिडेंस है, मेरी बात सुन लें। गलत लाइन पे चल रहे हैं। जब उस वक्त आप इनको दो जगह, एक सेकंड, आपने जब आप उनकी सीट जाती है, ऑब्जेक्टिव बात करें, देखें, तो उसके बाद आपने उनको 2 दफा मौका दिया खुफिया रायशुमारी का, 2 दफा मौका दिया, एक ही दिन में 2 वोट डाले उन्होंने। ठीक, हफीज शेख को 164 वोट डाला उन्होंने, फौजिया अरशद को 174 वोट डाला उन्होंने। ये एक ही वोटर है, एक ही दिन है।
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ایک وہ ہے کہ اگر ان کو چھپا کے ڈالا جائے تو یہ ہو جائے گا, چھپا کے انہوں نے 2 چاہ رہے تھے, مجھے صرف یہ بتا دیں پورے پاکستان میں کس سیٹ کا آپ کو سر, آپ کی بات ٹھیک ہے, گیلانی صاحب اصل مقابلہ ایک ہی سیٹ کا تھا, تو پھر اس میں تو آپ کو نو کانفلکٹ لیکن ہوا نا. پتہ چلا پر لیکن کرشمہ کل کی سازی ویڈیو بھی تو دیکھی خفیہ ہوگی آپ نے ووٹنگ جس میں سپتر گیلانی صاحب بندے کیا کہہ رہے ہیں بیچارہ ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, نہیں, ووٹ ووٹ ڈالنے کا ریجیکٹ طریقہ کرنا داخل تھا, ہے. ووٹ ریجیکٹ تو کرنے وہ ان کے وزراء کو بتا رہے ہیں, ان کے وزراء کو بتا رہے ہیں. اچھا سیکھا وزراء نے, وہ کر رہے ہیں. ویسے سیکھا وزراء نے, سیکھا وزراء نے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا دوسری اب دیکھا کہ یہ کیوں بیچ میں It is not an overly simplified situation by the way. یہ situation overly اب simplified دیکھا نہیں کہ ہے. میں خفیہ آپ کو کہہ ووٹنگ رہا کی ہوں کرشمہ الیکشن سازی. کمیشن کی میرا کہنا ہے الیکشن performance کمیشن کی اس میں پہ بات بات کرے بتا گی. رہا ہوں ارشاد بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ چھوڑ دینا جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو 9 ووٹ زیادہ پڑے ہیں وہ کون سی, اور آپ کے سامنے ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے مبینہ کالز موجود ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ سیم میرٹ سیم جو وہ اس کے اوپر رزمایا جائے گا سینٹ الیکشن کے اوپر. 10 میں ویڈیوز آئی تھیں تو مریم نواز صاحبہ نے کوئی 12 ٹویٹس کی تھی, یہ ویڈیو عطا تارڑ کے پاس, یہ فلانا ووٹنگ, آج کوئی نہیں کی جب ویڈیو. اچھا دوسری بات اب دیکھیے آپ نے خفیہ ووٹنگ کی کرشمہ سازی, یہ ہوتی ہے, کرو یار ٹویٹا کرو یار حاجی صاحب نے ذرا تھوڑا سا تسلی ہو گئی, تسی بھی ٹویٹا کرو. یہ ہوتی ہے خفیہ ووٹنگ کی کرشمہ سازی. وہ یہی کہہ رہے ہیں. ویسے ایک بات بتائیں علی صاحب, علی بھائی, مسئلہ یہ, میں اور ایک بڑا بیوقوف والا سوال پوچھنے لگا پر مجھے علی راجہ نے کہا کہ یہ سوال پوچھنا. سوری یار میں تم بیوقوف نہیں کہا, عدیل راجہ, عدیل راجہ نے, عدیل راجہ سپر آپ کے لوگ بکے. سر آپ کل کی جو ویڈیوز تھیں کیا بتا رہی ہیں آپ مجھے بتائیں. اچھا تھوڑے پس منظر, Why did you underplay that those names yesterday? میں نے جس آپ کے بندے سے فون یار دیکھ لیں گے, آپ کو کیوں لگ رہا تھا آپ مینج کر لیں گے سارے. سر کوشش کی 4 نام تھے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, اور آپ کے بیسٹ بڈی کے پاس وہ 4 نام موجود. اچھا ٹھیک, پتا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے لوگ بکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا, ہم نے پھر بھی کوشش کی, ہم نے کہا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, یہ طریقہ کار ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹ. اب ہم یہ کہیں آج ان کے پاس جا کے بی ریئلسٹک, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بات دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی ٹاپل ہو جاتی ہے, 1 ایم پی اے نہیں ہے, 8 ایم پی اے سے 2 سینیٹر اور فیصل سخی بٹ 2 ووٹوں سے ہارتا ہے پچھلے سینیٹ الیکشن میں. کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ووٹوں سے پی پی کا سینیٹر بنتا ہے. یہ آپ کا کیا ہوا تھا, کیا ہوا ضمیر نا سر, کھلے عام میں آپ کو بتاؤں بندے بکے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. اب یہ کہتے رہے کہ یہ ہوا وہ ہوا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ڈسکا کا الیکشن کمیشن کا ڈسکشن اور پرفارمنس, بندوں کو الیکشنوں سے پہلے توڑا بھی جاتا ہے. سر یہ ایک ہولسٹک پرابلم ہے جس میں آپ کی بھی پرابلمز ہیں نا. بریک کے بعد اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ یہ دس از اے لارجر پرابلم, یہ نہیں ہو سکتا ان کو خالی جو سینٹ الیکشن ہے وہ پرابلم ہے, جنرل الیکشن بھی پرابلم ہے. یہ نہیں ہوا ساؤتھ پنجاب ماز بن جاتا ہے, پتہ نہیں کتوں آ کے کی ہوتا ہے, لوگ کی آتے ہیں سر ساؤتھ پنجاب بنانا ہے, پھر غائب ہو جاتے ہیں اور پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں. ہونا کیا, ہاؤ ٹو اپروچ دس. پہلی چیز پہ تو سب کا اگریمنٹ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر پاکستان کو لینا چاہیے. الیکشن کمیشن کو کیا کرنا تجھے, یہ ویڈیوز کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 1 2 3 ہونا کیا چاہیے, پہلے ذرا اپوزیشن کا موقف لے لیں. دیکھیے ہونا جی استعفیٰ چاہیے, 2 نیا الیکشن ہونا چاہیے, فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے, کسی نے پھانسی اور نہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہاتھ میں دے دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے اور قانون سازی ہونی چاہیے, الیکشن لاز ریفارمز بالکل ہونی چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں اور ہم نے اپنے دور میں کی بھی ہے. جلدی پیکیج لے گئے ہفتہ 10 دن کے اندر ٹھیک کرے سارے کو. الیکشن ریفارمز میں یہ کام کریں گے, ہم بھی ساتھ دیں. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. وی نیڈ الیکٹرل ریفارمز, بوتھ سینٹ کے بھی جنرل الیکشنز بھی. ہم نے جانا ہے آئی ٹی کی طرف, ہم نے جدید کرنا ہے دنیا جہاں پہنچ. اور دوسری چیز الیکشن کمیشن کی پرفارمنس. الیکشن کمیشن کو اس کو جج ہوگا اس الیکشن کے بعد, الیکشن کمیشن کی پرفارمنس. 3rd طارق فضل چودھری کے لیے آج ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلط نااہل کروایا تھا یوسف رضا گیلانی. چلو جسٹیفائی کر دیا نا, پارلیمنٹ نے کر دیا نا آج. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم غلط اس ٹائم ٹھیک سی. اچھا اس تک ٹھیک. عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس نمبر 1. نمبر 2 الیکشن کمیشن کو کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے. الیکشن کمیشن آج اگر اس سے نکل گئے تو یہ کوئی نہیں ہوگا. اور نمبر 3 الیکٹرل یہ انتخابی اصلاحات کر لیں,
वरना एक रोता रहेगा, एक हंसता रहेगा, एक रोता रहेगा। और कल जो अभी आपने वक्फे में कहा, ये लतीफा संभाल के तारिक फजल साहब और सर जो आज काशिफ भाई जो अवाम ने देखा है, छोटी सी बात करूंगा, छोड़ दे पीटीआई, छोड़ दे नून लीग, छोड़ दे अवाम ने सियासतदानों के बारे में क्या राय का जरदारी साहब ने फरमाया अभी कि हमें कम वोट पड़े, हमें तो 20 वोटों से जीतना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि कोई पैसे लाके ना दरखास्त है, आप रोज बैठे होते हैं नहीं, लेकिन वो 20 अगर बड़े अरसे के बाद, 20 अगर बड़े अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन कोई अपने पांव पे खड़ा हुआ है तो थोड़ा उसको बख्श दे। नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर कोई एक बंदा मजबूत हो, अगर कोई एक बंदा अगर असूलों पे स्टैंड ले रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसे बख्श दे। देखिए वो एक रिलेशनशिप उनका, एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप किसी के साथ है, खड़ा हुआ इलेक्शन इदारे खड़े होते हैं, इदारे की बात है, इदारा खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का नाम लिया है, वरना अगर असल प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन का नाम लिया है, बिल्कुल इदारा खड़ा होना सर, चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन असूली 10 मौक़िफ़ पे खड़ा हो रहा है तो उसे और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे आप बताया इलेक्शन कमीशन ने कोई एक गैर आईनी बात की है, आईनी बात की है, आईनी मौक़िफ़ अपनाया है और आईन की फतह हुई है इलेक्शन कमीशन। सर मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन इसलिए इलेक्शन कमीशन को अगर इलेक्शन कमीशन डस्का में खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल किया है। एक सवाल तो जवाब दो। आप इधर भी खड़ा होना चाहिए। 20 वोटों की लीड से जीता गया था बकौल जरदारी साहब। तो वो किधर से आया? किधर से आया? और कहते हैं हम तो सिर्फ 5 से जीते हैं, 15 बंदे पैसे लाके नसीबी होंगे ना। नहीं तो 15 कौन सा, ये ढूंढो, ये भी इलेक्शन कमीशन ढूंढे, 15 कौन सा, 9 कौन सा, बड़े खुश होते हैं। और वीडियोस कौन सा। एक सेकंड, ये कौन सा जमीर है जिसके बारे में जरदारी साहब जानते हैं वो जाग गया, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी जानती है जाग गया, और किसी को पता नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा क्रेडिट लेती है कि हमने अपने केपीके के सूबाई असेंबली के मेंबरान को हमने फारिग किया और आइडेंटिफाई किया। हूं एक काम करो, एमएलए आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल करेंगे, हूं एक काम करो, करेंगे। पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इस्तीफा नो वोट ऑफ आपका है। कॉन्फिडेंस। आप कह रहे हैं मैं तो क्योंकि 2 वोट देख रहा हूं, आप 1 वोट देख रहे हैं, आप सियासतदान देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। अगर तो शेख साहब जीत जाते तो शायद हुकूमत की बहुत सी मुश्किलात कम होती या हल हो जाती। मुश्किलात बहुत बढ़ गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.